Picking that wicket. This pair doing a decent job, decent little partnership blossoming here. 20 of 8 deliveries. Really a lot of entertainment here, glamour, along with cricket. That's tells the story. As the day progresses, the evening sets in. We'll see more people here. It's a big stadium. Oh, appeal as well. Well, Yusuf going for everything. A lot of excitement, optimistic as well. छठा ओवर चल रहा है अजय और लक्ष्य इतना कठिन नहीं लग रहा है। जिस तरीके की बैटिंग देखने को मिली है मुझे लग रहा है कि मंजिल के करीब है unless they make some silly mistakes। और रमना अभी तक तो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, स्ट्राइक रेट भी 150 से ऊपर है और अगर हम रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें अजय तो दे आर वे अहेड ऑफ द टारगेट। And that needs no words. That's a beautiful delivery and sends the batsman back to the pavilion. A reason to celebrate and the stadium erupts into celebration. Yeah, he's a very handy cricketer, Sandy. See him in the past as well. The batsman just trying to go across the line as well, trying to work the ball on the onside, missing it. As I say, you miss, I hit. That's exactly what he does. And just see the excitement as well. He's really pepped up, Sandy, picking up his second wicket. Ajay, if we compare, Grayasan walking back for 9, bowled by Sandy. It's 49 for 2. commencement of the 6th over and Prithvi Rajan is batting the Chennai Rhinos. Definitely need to get their act together. They've just lost a wicket. And perhaps this is the moment that they can capitalize on, Ajay. And they have a handy bowler such as Sandy, the handyman, who's just given a breakthrough. Yeah, he's a good cricketer. He's an experienced cricketer. I've seen him in few editions of the CCL. Knows exactly what to do. Every over is going to be important. Every dot delivery is going to be important. The 50 up with that single here for the Chennai Rhinos. 42 required of 27. Shouldn't be very tough. They still have wickets in hand. A lot will depend on Ramana. He's a good striker. Prithvi has just come in, opening his account for the very first delivery. What Sandy does is mixes up his pace, uses the crease as well very often. Once again going for the big shot. Oh, just falling in between Sandy and the fielder coming in from short mid wicket. Falling short on that sitter, Ajay. अजय माहौल पे जरा गौर फरमाएंगे तो देखेंगे जब शुरुआत हुई थी इस मुकाबले की तब समा थोड़ा लुभा तो रहा था पर अब कैप्टिवेट कर रहा है। इस फॉर्मेट को मद्देनजर रखते हुए अजय आपको क्या लगता है कि प्रेशर एक खिलाड़ी के जहन में साफ झलकता है? या बिल्कुल, और हर खिलाड़ी को अपना रोल समझना होगा क्योंकि यहाँ पे जब अगर आप सेट हो जाए बतौर बैट्समैन बहुत जरूरी है उस स्टार्ट को आप कन्वर्ट करें। अगर आप गेंदबाजी कर रहे हैं डॉट डिलीवरीज पे ध्यान दीजिए। अब सैंडी अपना अंतिम ओवर कर रहे हैं क्योंकि 2 ओवर ही आप कर सकते हैं मैक्सिमम। इंद्रशीष मैंटी ने एक ओवर डाला है पर बेहतरीन ये ओवर इस बार ऑन साइड पे खेला, कोई बाउंड्री राइडर्स और यहाँ पे 4 रन मिलेंगे अंतिम गेंद पे। 6 ओवर की समाप्ति 55 पे 2। रन रेट 9 से ऊपर लगभग का ज्यादा अंतर नहीं। अगर आप वर्तमान का रन रेट देखें रिक्वायर्ड रन रेट लगभग बराबर है। मैंटी अब आते हुए सैंडी ने अच्छा कार्य किया। इस बार गेंद हवा में, टाइमिंग इतना बढ़िया नहीं और एक और मौका गवाया। एक आसान सा कैच, एक सिटर कह सकते हैं इसे अजय, एक लड्डू जिसको इन्होंने गवा दिया। Another missed chance, another regret to take back home today.
पर मैंने इनको थोड़ा सा मार्जिन देता हूँ हमेशा, क्योंकि ये इनका जो मेन कार्य है वो है एक्टिंग करना। ये सितारे हैं फिल्म इंडस्ट्री के, पर ये उनका ये प्रोफेशन नहीं है। प्रयास कर रहे हैं। अगर आप देखें ये कैचेस लगते हैं आसान है, पर जब आप खुद होते हैं डीप में, आसान होते नहीं। कई बार जो गेंद स्वर्ल कर रही होती है, ये काफी अभ्यास भी करते हैं। चेन्नई राइनर्स के आप समर्थक देख रहे हैं, हमने बंगाल टाइगर्स के देखे। जैसे आपने कहा विलीज, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा है, शाम ढल रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पे जो दर्शकों की तादाद है उसमें भी वृद्धि नजर आती हुई। जी बिल्कुल, और अजय ये ना भूले कि ये फेस्टिविटी का माहौल है। क्रिसमस ईव है आज और हैदराबाद है शहर, और आप देख रहे हैं CCL T10 ब्लास्ट विच इज पावर्ड बाय भारतीय सीमेंट। और राइनोस को अब चाहिए कुछ रन, और वो भी जल्दी चाहिए। 23 बॉलें बची हैं और 35 रन बनाने हैं। और क्रीज पर अभी रमना और पृथ्वी हैं। पृथ्वी अभी थोड़ी देर पहले ही आए थे, पर खाता खोल चुके हैं, और अभी तक इंडिकेशन तो यही कह रहे हैं कि इन दोनों की साझेदारी इस मैच को छोर तक ले जा सकती है। जी, और जैसे मैं कहा था, रमना को मैंने पिछले एडिशन में देखा था, बहुत बढ़िया बल्लेबाज है, अच्छे स्ट्राइकर है। और जब वो सेट हो जाए ना, और अगर आप इस प्रकार के शॉट्स खेल रहे हैं, टाइमिंग अच्छा कर रहे हैं, तो फिर बहुत जरूरी है जो स्टार्ट आपको मिला है उसका पूरा लाभ आप उठाए, उसको कन्वर्ट करें। 34 रन 22 गेंदों में, बहुत ही करीबी है मुकाबला। और T10 का जो रोमांच है ना, वो अलग ही है, अलग ही प्रकार का है, क्योंकि कई क्लोज मैचेस आप देखेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही है, परिपक्वता से खेल रहे हैं। 9 रन की साझेदारी, और देखते हैं इस गेंद पे क्या होता है। कुछ नहीं हुआ, ये भी एक अचीवमेंट है। देखिए इसी बीच में जब वो रुक गए गेंदबाज, जो स्ट्राइकर है पृथ्वी, एक रनर भी है, उसके साथ बातचीत कर रहे थे, कुछ आपस में चर्चा कर रहे थे, कोई रणनीति बना रहे थे। तो दिलचस्प रहेगा क्या करते हैं पृथ्वी। ऑन साइड पे बढ़िया सो थोड़ी गति मिशन करते हुए यहाँ पे बैंटी। पिछली 24 गेंदों में अजय 39 रन आ चुके हैं। गति जो है मुझे लग रहा है सेटबैक्स के बावजूद भी राइनोज ने बरकरार रखी है। और बंगाल को ये नहीं भूलना चाहिए कि कैचेस विन मैचेस, और जिस तरीके के कैचेस जो लड्डू हमने गिरते हुए देखे हैं आसमान से क्रिसमस वाले दिन, वो मुझे लग रहा है कि वो इनकी हार का सबब बन सकते हैं। क्या ख्याल है सर अजय आपका? जी हाँ बिल्कुल, अगर आप कैचेस छोड़ेंगे तो मुकाबले भी आपको गंवाने होंगे। पर अभी तक कहना होगा मैंटी और सैंडी का जो प्रदर्शन रहा है, बड़े राइमिंग वर्ड्स है, मैंटी सैंडी, बहुत बढ़िया उन दोनों का प्रदर्शन रहा है। और हम बात कर रहे थे, देखिए डॉट बॉल्स, ये अहम है। 16 डॉट बॉल्स, 7वां ओवर भी चल रहा है, 8 बाउंड्रीज लगी हैं। स्ट्राइक को थोड़ा रोटेट करना होगा, केवल 13 सिंगल। जितनी स्ट्राइक रोटेट करेंगे, जितना स्कोरबोर्ड चलता रहेगा, वो आपके पक्ष में रहेगा। जी, और अगर टाइगर्स से तुलना करें हम फॉल ऑफ विकेट्स की, तो राइनोस का प्रदर्शन मार्जिनली बेटर रहा है। और ये अच्छा शॉट, और इंटरसेप्ट कर लिया गया, एक सिंगल मिलेगा। मैंटी बॉलर और फील्डर थे सैंडी। और अभी तक इस ओवर की आप बात करें तो बढ़िया ओवर आया है। अगर आप बाउंड्रीज कंसीड नहीं करें तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। देखिए अगले जो बैट्समैन है पैडेड अप हैं चेन्नई राइनर्स के लिए, पूरी तरह से जो नजर है वो अंदर है, थोड़े से रिलैक्स भी नजर आ रहे हैं, ऐसा टेंस नहीं है। जी, बहुत जरूरी है कि अपनी मानसिकता को काबू में रखें और प्रेशर के आड़े ना आए। और ये हो सकता है एक नुकसान हो जाए, पर खाली है स्पॉट, 2 रन मिलेंगे। 63 for 2, एंड ऑफ द ओवर। Match number 1, a very intriguing contest going on. 2 wickets for Sandy, the only successful bowler so far. Rashish also has done a good job so far. You can see those flags being waved all round. 29 required of 18 deliveries. Anything can happen. One good over. The pressure will be mounting on the Chennai Rhinos.
few wickets, things could be different. One good over as far as runs go. The Chennai Rhinos could be in a very good position. Going to be more now on the Bengal Tigers. Change in bowling from the pavilion end. Well, this is the shortest format of the game, and one would actually reckon, Ajay, that the explosive batting that one gets to see in the next cousin of a format, which is T20, is still missing. It's been 48 balls since the last sixer was cracked, and it's been 6 balls since the last 4 was cracked. But definitely, the crowds are getting into the rhythm. It's Christmas Eve. It's the first match of the CCL Season 7, and the action has just gotten started. And 29 runs to win from 18 balls, a very gettable target. Prithvi and Ramana have been holding fort. They've had a partnership of 14 runs in 10 balls, and they definitely can steer their team to a victory and get off to a flying start, which will ensure that the group stages will welcome them forward.